Hi everyone, welcome to our YouTube channel Merchant Navy Decoded. We are here with another interview with a GME aspirant named Tushar, who just got selected in Anglo Eastern. So welcome Tushar. Uh, Thank you, brother. Okay, so let's start with our interview with Tushar. So Tushar, firstly introduce yourself or tell us something about your journey. Okay, so my name is Tushar Kala, and I am from Rudraprayag, Uttarakhand. I have completed my BTech from GB Pant Institute of Engineering and Technology, Khurdori, Pauri Garhwal. Thereafter, I always wanted to join Merchant Navy. For guidance, I purchased Merchant Navy Decoded package, and I get connected with their team, and they helped me in my preparation, and that is how I came to know about the insights of exam. And I always wanted to join Merchant Navy from Anglo Eastern. That was my favorite company because it has the largest fleet right now at the moment. So I opted for Merchant Navy, sorry, for Anglo Eastern. Thereafter, with the help of this course, I cleared my written. Thereafter, I have also cleared my Merchant Navy interview. Okay. So Tushar, next question is why did you join Merchant Navy as an engineer, not as a deck officer? Okay, so tech is something which always fascinates me. Navigation part I feel a bit boring. Like you might find it interesting, but for me, some techies things are something which tech tech related things always attracted me. So that is the reason I wanted to join as a marine engineer in Merchant Navy. ओके सो आपने किसी और कंपनी के लिए भी ट्राई किया था या फिर आपका मेन गोल एंग्लो एशियन ही था? एक्चुअली मैं सिनर्जी के लिए मैंने अप्लाई किया था, बट ओके मेरे को सिनर्जी में ज्वाइन नहीं करना था। मैंने उसका एग्जाम छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ ओके सम पर्सनल रीजंस। क्योंकि मेरा एंग्लो का मैं कॉन्फिडेंट था, एग्जाम हो चुका था, इंटरव्यू होने वाला था, लेकिन मेरा प्रिपरेशन इतना था कि मेरे को पता था मैं निकाल लूंगा। सो फॉर ओके दैट रीजन एंड एंग्लो इज माय फर्स्ट चॉइस लाइक तो एंग्लो वाज द फर्स्ट फर्स्ट लव यू ट्राई. कैन से। ओके या ओके so next question Tushar is why did you go for GM Excellence package and when did you go for GM Excellence package when you find? इट ओके it was in December then that I came to know about Merchant Navy Decoded. Actually, I was just scrolling YouTube and I got one video from Praneeth sir. Uh, he's a very interesting guy. So from thereafter, I researched a bit and I landed up in getting links of Merchant Navy Decoded. In December, I started the course, and the course is designed in such a way that short videos are available. Since we know we have studied all the things in college, तो ऐसा होता है ना यार, बस तुम्हें एक आइडिया चाहिए होता है। तो बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर किया था इस पैकेज ने। सो इट हेल्प मी अ लॉट in my written examination and interview. In for interview, I'm saying that these are my words, mark my words, apart from this package कुछ भी नहीं आता, सारा यही आता है। मतलब एक एक वर्ड भी इधर उधर नहीं होगा। अगर तुमने ये सारी वीडियोस जितनी भी है अवेलेबल तमीज से देखी है, समझी है। देखना अलग बात होता है, समझना अलग बात होता है ना। Yes, तो yes. तो अगर आपने अच्छे से समझी है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं अपने, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग एनी स्पॉन्सरशिप, वेदर इट्स एंग्लो, इट इज सिनर्जी, इट इज सिम्स और एनी अदर थिंग, सेवन आइलैंड और अदर कंपनीज। ओके so तो आप हमारे मर्चेंट नेवी डिकोडेड के बहुत सारे पहले मेंबर से ग्रुप में एडेड होंगे राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तो आपको उस ग्रुप से यस। किस तरह से हेल्प मिली और जैसे कि जो हमारे बाकी टीममेट्स हैं मर्चेंट नेवी डिकोडेड के उन्होंने आपकी किस तरह हेल्प की है? ओके, ये ग्रुप में अगर मैं बताऊँ ना, तो जो बंदे हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, तो वो सब एस्पायरिंग, सॉरी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है? दे आर एस्पायरिंग फॉर जॉइनिंग मर्चेंट नेवी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बंदे वो हैं जिन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप क्लियर कर ली है और वो अपने अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लाइक ज्ञान एंड एक दो बंदे और हैं, मेरे को नाम याद नहीं है। तो उनके एक्सपीरियंसेस, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हमारी कोई भी, सपोज मेरी कोई भी क्वेरी थी, तो मैं ग्रुप में क्वेश्चन डाल देता था, यार ये क्या है,
मेरे को समझ नहीं आया इसका आंसर, तो वहां से रिप्लाई आ जाता था, एक नहीं 10-10 रिप्लाई आते थे, हर बंदा अपना अपना पर्सपेक्टिव देता था कि ये, फिर उसको हम मैं एनालाइज करता था कि हाँ यार, इट इज दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व इन सच अ वे। तो मेरे को काफी हेल्प हुई, और सबसे ज्यादा मुझे जो हेल्प हुई वो हुई यार इंटरव्यू के पर्पज से। इंटरव्यू में ना तुम 10 बंदों का, 20 बंदों का, 30 बंदों का इंटरव्यू अगर सुन दो ना, तुम मेंटली वैसे ही प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि यार अगला क्वेश्चन मेरे मेरे इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछेगा, और राइट। मेरा जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा वो मुझसे क्या पूछेगा। तो एक्सपीरियंसेस मेरे हिसाब से बेस्ट पार्ट फॉर प्रिपेयरिंग इंटरव्यू इज लोगों के एक्सपीरियंस सुनो, उसकी इनसाइट नोट करो, और जो चीज वो लैक करे थे उसको अपने इंटरव्यू में इनकलकेट करने का ट्राई करो। ओके, तो तुषार, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे कि क्या आपके पैकेज उतना हेल्पफुल लगा कि जो आप अपने फ्रेंड्स या फिर जो आपके रिलेटिव्स हैं, कि आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो बाकी एक्सपीरियंस है कभी आपको मौका मिले? देखो यार, मैं ना सजेस्ट करूंगा कि इस पैकेज के लिए जाओ, क्योंकि देखो, देख नॉर्मल क्या बोलते हैं, मैकेनिकल सबको आती है, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस इन इट। कोई भी मैकेनिकल का स्टूडेंट है उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह ये आएगा। लेकिन यार कुछ टर्म्स होते हैं या फिर कुछ चीजें होती है जो स्पेसिफिकली शिप में यूज होती है, और जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं वो बेसिकली व्हीकल ओरिएंटेड ज्यादा होता है, ठीक है। लाइक इंजन्स में भी अगर हम बात करें तो वो उसने तुमसे मरीन इंजीनियरिंग के इंजन की, सॉरी, मरीन इंजन के बारे में पूछ दिया, ठीक है। तो तुमने तो बेसिकली नॉर्मल आईसी इंजन पढ़ा है ना, तुम्हें नहीं पता कि कौन मरीन में कौन सा यूज होता है और क्यों यूज होता है, स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। ये कोर्स बेसिकली ना मरीन इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है। इसमें तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें शिप पे किस किस चीज की क्यों जरूरत पड़ती है, और क्या साइंस है इसके पीछे, क्या टेक है इसके पीछे। बेसिक तुम्हें पता है। लेकिन मेरे हिसाब से यार जो भी बंदा देख रहा है इस पॉडकास्ट को, यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज तुम्हें इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछेगा डायरेक्ट मैकेनिकल से, तुम्हें शिप से लिंक करके पूछेगा, एंड वो तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यार वो हम नहीं पढ़ते, हमें नहीं पता। लेकिन अगर तुम ये वाला पैकेज लोगे, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ना कोई पैसे वैसे मिल रहे हैं, लेकिन यार मैं बोलूंगा तुम्हें जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुम नहीं गए इसको पढ़ के, ठीक है, तुम्हें नहीं पता, इंटरव्यू तुम्हें बाहर कर देगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, पैकेज ले लो, पढ़ लो, और अपना फर्स्ट गो में निकाल लो। मेरा भी फर्स्ट गो था, मैंने इसलिए बेवकूफी नहीं करी क्योंकि मेरे को मेरा एक सीनियर था, उसने बता दिया था यार इससे रिलेटेड पूछते हैं, ठीक है। अब तुम यूट्यूब में एक एक वीडियो सर्च करते जाओगे तो कंटेंट तुम्हें 8-10 महीने लग जाएंगे, तो अपना टाइम वेस्ट कराने से कोई फायदा है नहीं, और वो भी पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो राइट। तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए पैकेज मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू, की जो भी सारा जो हमें कंटेंट चाहिए जीएमई के लिए, वो इस पैकेज में इन्वॉल्व है, राइट? जो जिसमें बिल्कुल हमें बिल्कुल, ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा, राइट? वही वही वही, ओके। बिल्कुल। ओके, तो तुषार, माय नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज इंटरव्यू इज, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जीएमई एस्पिरेंट्स को कि उन्हें अपना गोल जो उन्होंने डिफाइन किया उसे कैसे अचीव कर सकते हैं वो? ठीक है यार, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें मर्चेंट नेवी ही ज्वाइन करनी है, लाइक जो मेरा पर्सनल रीजन था, मेरा ये था कि ये पेमेंट बहुत अच्छी है, मतलब जो सैलरी है बहुत अच्छी है, प्लस जो आपका क्या बोलते हैं, हॉलीडेज है वो इनफ है। और मैं थोड़ा वैसे टाइप का बंदा हूँ कि आई लव ट्रैकिंग एंड ऑल, वैसे ही पहाड़ पहाड़ से हूँ, तो मेरे को लव प्यार है यार पहाड़ से, माउंटेन्स आर लव, है ना। तो मेरे राइट। को चाहिए, अगर मैं 9 to 5 जॉब करता किसी दिल्ली गुरुग्राम में, कोर में जॉब कर लेता, तो भाई 15 दिन की छुट्टी देते तुम्हें, 20 दिन की देते, 25 दिन की देते, उससे ज्यादा तुम्हें मिलेगी नहीं हॉलीडे। ये जॉब राइट। ऐसी है, तुम्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी देता है, और लिमिटेड वर्किंग आवर्स देता है, और तुम्हें स्पेसिफिक हॉलीडेज मिल रही है, अच्छा वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, हॉलीडेज मिल रहा है। तो ये मेरा मोटिवेशन था, तुम्हारा मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। तो ये मोटिवेशन अगर तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हें अच्छी लाइफ जीनी है, तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। अपना अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज से तैयारी कर लो। मैंने ये बेवकूफ़ी करी, मैंने कॉलेज से तैयारी नहीं करी, मैंने बाद में जाके करी, मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे इतना। तो तैयारी करते रहो अपना कोर में। क्या पहले सिलेबस देख लो जीएमई का कि एक्चुअली सिलेबस है क्या, अपने वो वाले कंसेप्ट क्लियर कर लो। उसके राइट। बाद शिप ओरिएंटेड जो नॉलेज है अपनी, वो बिल्डअप करनी धीरे धीरे स्टार्ट करो। फिर जीएमई का जो पेपर होता है रिटर्न, उसमें तुम्हारा एप्टीट्यूड वगैरह इंग्लिश भी आती है,
और बेसिक इलेक्ट्रिकल जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वो भी आती है। वो वाले अपने लेवल है वो धीरे-धीरे करके बढ़ाओ। जब तुम्हारा वो आ जाए, रिटर्न के लिए अप्लाई करो, मतलब अप्लाई तो पहले ही कर दो। रिटर्न में बैठो, रिटर्न क्लियर करो। इंटरव्यू के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार वो ग्रुप है, आप लिंक डाल देना ग्रुप का, अगर मतलब बता देना यार जैसे भी जॉइन करना है वो ग्रुप। मैं तो मर्चेंट नेवी डिकोडेड के थ्रू हुआ था। तो वो ग्रुप बहुत ही अच्छा है यार वो मेरे हिसाब से। और अगर तुम ग्रुप ज्वाइन भी नहीं करते तो यूट्यूब पे चैनल है आई गेस, मेरे को चैनल का नाम अभी कम ऑन Merchant लेट्स Navy लर्न करके Decoded. है। हाँ जी, मर्चेंट नेवी Okay. डिकोडेड करके भी है। तो वो चैनल ज्वाइन करो, यूट्यूब वीडियोस देखो, एक्सपीरियंसेस देखो बंदों के जो पास्ट ईयर सेलेक्टेड हुए हैं, उनके क्वेश्चंस नोट करो। इंटरव्यूइंग ऑफिसर कौन था, उसका बिहेवियर क्या था, कैसे उसके सामने रहना है, और आंसर जो है ना इंटरव्यू में वो टू द पॉइंट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यार मैं मेरे को नहीं आता तो मैं राउंड 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 रैप कर रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। ये चीज करो, क्लियर हो जाएगा। Okay. Okay. Now that's the end of our interview today with Tushar. Thank you, Tushar, for joining us and sharing your ओके, experience with our aspirants, upcoming seafarers. Okay. यस So यस। I hope you like this interview with Tushar. तो GME एक्सीलेंस पैकेज का जो हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एज वेल एज जो हमारे पिन कमेंट्स में भी है, जहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं. ओके. सो थैंक यू फॉर टुडेज. जय हिंद, जय भारत, जय माता.